Hello dear students. Today we are going to study solution of linear programming problem by graphical method. In this problem we will be having three constraints. In the previous video we have discussed for two constraints only. Okay. So here our problem is maximize z is equal to 48x1 plus 40x2. Subject to the constraints are 2x1 plus x2 is less than equal to 90, x1 plus 2x2 is less than equal to 80, and x1 plus x2 is less than equal to 50. And our non-negative constraints are x1 comma x2 is greater than or equal to 0. Okay, so here we are having three constraints, first, second, and third, and all the constraints are of the signs less than or equal to. Okay, now we know that what we have to do first. Firstly, what we have to do, we have to convert these constraints into equations. Okay. So our first constraint is 2x1 plus x2 is less than equal to 90. Now here अगर अब हम इस less than equal to साइन को हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन, तो हमारा हो गया 2x1 plus x2 is equal to 90. अब हमें x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने पुटअप किया x1 को 0. नाउ इन दिस इक्वेशन अगर हम x1 की प्लेस पर 0 रख दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 90. मतलब हमें x2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 90. इन द सेम वे अगर हम इसी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं x2 की प्लेस पर 0. अब अगर हमने x2 की प्लेस पर 0 पुट किया तो x2 अगर हमारा हट गया तो 2x1 इज इक्वल टू 90. तो हमारा x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 45. ओके, सो अब यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमारे क्या क्या हो गए, 0, 90 एंड 45, 0. These are our points for constraint first which we have converted into equation. Now our second constraint is x1 plus 2x2 is less than equal to 80. इसको भी हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, x1 plus 2x2 is equal to 80. Now again we have to find the values of x1 and x2. जब x1 की वैल्यू 0 होगी, जब यहाँ पर हम x1 की प्लेस पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x2 इज इक्वल टू 80 मीन्स x2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 40. ठीक है, एंड इफ यू पुट x2 इज इक्वल टू 0, अगर हमने x2 के प्लेस पर 0 पुट किया तो वी विल गेट x1 इज इक्वल टू 80. Okay, so from second constraint our points are 0, 40 and 80, 0. Now similarly for the third constraint we have x1 plus x2 is equal to 50. So here again we will find the values of x1 and x2. If x1 is equal to 0, if x1 is equal to 0, we will get x2 is equal to 50. And if x2 is equal to 0, we will again get x1 is equal to 50. So here our points will be 0, 50 and 50, 0. So in this way we are getting these points for all the three constraints, and now we'll plot all these points on the graph paper. So to plot these points on the graph, it will be having two axes. This one will be x1 axis and this one will be x2 axis. We have two x1 and x2 axis. इन दोनों ही एक्सिस पर हमने क्या किया है, मार्किंग कर ली है अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट्स. इफ यू सी दीज पॉइंट्स वी हैव द मिनिमम वैल्यू एज 40 एंड मैक्सिमम एज 90. तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव मार्क दिस पॉइंट्स. नाउ फॉर द फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स आवर पॉइंट्स आर 0, 90. 0, 90, 0 is for x1 axis and 90 is for x2 axis. So on x1 axis it is 0 and on x2 axis it is 90. तो हमारा ये वाला जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया हमारा 0, 90. ओके, नाउ यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, 45, 0 मीन्स ऑन एक्स एक्सिस वी विल हैविंग 45. 45 कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच में, तो इट विल बी आवर 45. तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 45, 0. ओके, नाउ we will join these two points by a straight line. So this is our first
straight line which we have drawn by using these points. So this is our first straight line. ठीक है. Now we know that here again our constraints are of less than or equal to, so हमारा जो फिजिबल एरिया आएगा वो कहाँ आएगा, इस लाइन पर या इस लाइन के नीचे. ठीक है, तो ये हमने बात की फर्स्ट लाइन की. अब हम आ जाते हैं सेकंड पर. हमारे सेकंड के पॉइंट्स क्या हैं, 0,40 मीन्स ऑन एक्स एक्सिस 0 एंड ऑन x2 एक्सिस इट इज़ 40. तो दिस विल बी आवर पॉइंट 0,40. ओके, नाउ ऑन सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, 80,0 मीन्स ऑन x1 एक्सिस इट इज x1, दिस विल बी आवर 80,0. So again we are getting these 2 points 0,40 and 80,0. इन दो पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, फिर से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे. तो दिस इज अवर सेकेंड लाइन. नाउ ये वाला भी जो इस कंस्ट्रेंट का भी फिजिबल एरिया हमें कहाँ मिलेगा, लाइन पर या फिर लाइन से नीचे. ओके, तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन लाइन. नाउ कम टू द थर्ड के पॉइंट से हमारे 0,50. तो ऑन x1 एक्सिस इट इज़ 0 एंड ऑन x2 एक्सिस इट इज़ 50 एंड 50,0 ऑन x1 it is 50 and on x2 it is 0. So again we are getting these 2 points, this is 0,50 and this is 50,0. Now again these 2 points, ये जो दो पॉइंट्स हमें मिले हैं 0,50 एंड 50,0, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे. तो दिस इज आवर थर्ड लाइन, 50 to 50 इट इज़ आवर थर्ड लाइन. अब यहाँ पे ये वाला भी जो हमारा कंस्ट्रेंट था ये कैसा था, लेस देन और इक्वल टू का. तो इसका भी हमारा एरिया कहाँ जाएगा, लाइन पर या लाइन से नीचे. ठीक है, अब यहाँ पर हमने तीनों स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर ली हैं. अब हमें इसमें देखना है कि हमारा कॉमन एरिया कौन सा होगा. तो देखिए अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, तो ये हमारा कॉमन एरिया नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस वाली लाइन का हमें फिजिबल एरिया मिल रहा है, बाकी दोनों लाइन के एरोज कहाँ जा रहे हैं, नीचे. ये जो हमारा छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ये भी हमारा फिजिबल एरिया नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आपके पास से दो लाइंस का नीचे वाला एरिया मिल रहा है, लेकिन थर्ड लाइन का एरिया उससे नीचे जा रहा है. ये भी हमारा फिजिबल रीज़न नहीं हो सकता. तो अगर हम इन सब में कॉमन एरिया देखें जहाँ पर हमारी तीनों लाइन जो हैं उसका एरिया हमें मिल पा रहा है, तो दिस विल बी योर फिजिबल रीज़न. ये वाला जो रीज़न बन रहा है आपका, ये क्या हो गया, आपका फिजिबल रीज़न. ठीक है, अब ये जो फिजिबल रीज़न हमारा बन गया है, हम इसको नेमिंग कर देंगे. दिस विल बी O, A, B, C एंड दिस वन इज D. ओके, तो हमारे चार पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, O, A, B, C एंड D. अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये जो पॉइंट्स आ गए, हमें क्या करना होता है नेक्स्ट, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, देखिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है, O, A, B, C और D. देखिए अगर हम O की बात करें तो O के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, ये क्या होंगे हमारे 0,0. अब अगर हम A की बात करें तो देखिए A के पॉइंट्स भी हमारे पास हैं. A का क्या हो गया आपका 0,50. B और C जो हैं दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ टू लाइंस. तो हमें ये दोनों पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे. अगर हम D की बात करें तो हमारा D क्या बन रहा है, यहाँ पे D की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 45,0. अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, B के और C के. देखिए अब अगर हम B की बात करें, देखिए अब B को देखिए, अगर हम B देखें तो B किन दो लाइन का इंटरसेक्शन है. देखिए एक तो ये वाली लाइन है सेकंड लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी है, थर्ड. तो B जो है वो किन दो लाइन का इंटरसेक्शन है, सेकंड का और थर्ड का. मतलब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हमें किसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, B के. ठीक है, अब अगर हम B के पॉइंट्स के लिए बात करें तो देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी और हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी. अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, x1 + 2x2 इज इक्वल टू 80. और हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, x1 + x2 इज इक्वल टू 50. अगर हम दोनों को सॉल्व करें
माइनस किया तो हमें यहाँ पर से क्या मिल रहा है, x2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो x2 की वैल्यू अगर 30 आ गई है तो इस x2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पुट कर दें तो x1 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी बताइए। x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। ठीक है, तो हमारे जो b वाला जो हमारा है, b के पॉइंट्स हमारे क्या क्या बन गए, 20, 30। तो ये हमने किसके निकाले, b के। सिमिलरली हम किसके निकालेंगे, c के। अब c को देखिए, c किन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो आपकी आ रही है लाइन नंबर 3 और एक है आपकी लाइन नंबर 1। तो हमारा c किसका इंटरसेक्शन है, 3 का एंड 1 का। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, और हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 50। अगेन हमने क्या किया, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमें यहाँ से मिलेगा x1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 40। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40, और अब x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ 40 पुट करते हैं तो हमें x2 कितना मिल जाएगा, 10। x2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। तो हमारी जो c है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या क्या मिल गए हैं, 40, 10। ठीक है, तो हमें ये सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को हमें पुटअप करना है टेबल में। तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, O, A, B, C और D। O के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं हमारे, 0, 0, O के A के 0, 40, B के 20, 30, C के 40, 10 और D के 45, 0। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम कहाँ पुट करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, विच इज़ 48x1 प्लस 40x2। सबसे पहले अगर हमने z यहाँ पर अगर हमारा जो फर्स्ट हमने अगर पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 0 मतलब 0। सेकेंड पॉइंट पुट करें तो 48 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 40, तो हमारा ये कितना हो जाएगा आपका 1600। थर्ड पॉइंट पुट किया तो 48 इंटू 20 प्लस 40 इंटू 30, 48 इंटू 20 एंड 40 इंटू 30, ये आपका कितना आ जाएगा 2160। अगला पुट किया तो 48 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 10, तो हमारी यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी आ गई 2320। यहाँ पे आ जाएगा z 48 इंटू 45 प्लस 40 इंटू 0 और यहाँ पर हमें मिल रहा है 2160। ठीक है, नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यू हैव टू मैक्सिमाइज z। तो देखिए इन सब में से हमारी जो मैक्सिमम z की वैल्यू है वो कितनी है 2320। तो व्हाट इज आवर मैक्सिमाइज z, तो मैक्सिमाइज z कितना आ रहा है 2320, और किन पॉइंट्स के लिए आ रहा है, जब x1 की वैल्यू कितनी होगी 40 और x2 की वैल्यू कितनी होगी 10। तो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन कि when x1 will be 40 and x2 will be 10, then we will get the value of z maximum, which is 2320. Okay, thank you.